बहुत एक नॉस्टैल्जिया फील हुआ व्हेन आई एंटर्ड द कैंपस टुडे। तो अपने उस्ताद की जो इज़्ज़त नहीं करता वो दुनिया जो है वो इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फॉर द MSPM एज वेल। जब आपकी फर्स्ट जॉब हो, डोंट लुक फॉर द मनी दैट यू आर गेटिंग, जस्ट लुक फॉर द ग्रोथ एंड ऑब्वियसली हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ like collecting the memories with my best friends as well. We are understanding the changing landscape, the changing dynamics in the landscape of digital media as well. Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of Back to Behria. I'm your host Yumna, and if you're wondering what happens on this program, just as a reminder, we interview Behrians, we interview our alumni members who are making great strides in their respective fields. So today we have a very interesting guest. I have with me Bakhtawer Mahmood. She did her MS in project management in 2018. She has a very interesting background from nanotechnology to project management to digital media. So let's ask her. She's here with us. Let's welcome her and go back in time. Let's ask her about her memories and what she's currently doing right now. Hello Bakhtawer, how are you? I'm perfectly fine. How are you? I am good. Thank you so much for coming to Behria. It's actually an absolute pleasure. बहुत एक nostalgia feel हुआ when I entered the campus today. It brought back the memories that I had 2 years ago. और एकदम से देख के सब कुछ लगता है बिल्डिंग्स वहीं हैं, सब लोग बस तब्दील हो गए हैं. Everything is right there. Welcome once again in the studios. We were talking earlier and you talked about your very fascinating journey. आपने nanotechnology की field से start किया, MS project management की मेहरिया यूनिवर्सिटी से, और अब आप प्रो पाकिस्तानी में काम कर रही हैं. You are the head of strategic communication in Pro Pakistani. So how has that journey been? You've taken a lot of twists and turns. Why and how did you end up in the field of media and digital media? Okay, someone will call it a very interesting journey, but for me it was a journey worth experiencing because there are few people जिनको समझ आ जाती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, so they are just right on the track from the beginning. उन्हें पता होता है कि उनके goals हैं. I was a very different person from the very beginning. I did not know. I always wanted to become someone who is doing something very different for the world. And that was the reason I thought पहले बचपन में हम सोचते थे अच्छा डॉक्टर बनना, उसके बाद इंजीनियर बनना. Then you thought I was becoming a GD pilot. My parents wanted me to become an aeronautical engineer or probably join Air Force, and that was the reason I took pre-medical and pre-engineering both in my A-levels as well. So मैंने काफ़ी सारे subjects पढ़े and I got to know that science was something that intrigued me. That was something जो कि probably दूसरे literature और इस तरह के subjects जो हैं वो मुझे attract नहीं कर पा रहे. Then I wanted to become a scientist, but not just like a BS or a MS in one particular subject. So nanotechnology was the field that intrigued me because हम future के बारे में बात कर रहे थे और इस वक्त पाकिस्तान में तो फ़िलहाल nanotechnology की इतनी बात नहीं हो रही, but if you assume कि जिस तरह से defense पूरा एक mechanism जो है वो कितना improve हो चुका है, Israel, Canada, America, they're all working like 50-70 years ahead of what we are doing. So that technology was something which I read about like in my A-levels, that this is going to change the future. So I opted for that. I got like 100% scholarship for that university as well. So I thought, okay, this is it. But before I graduated, I also got my fellowship from Queens and also from one university in NCNST in Beijing. But due to some personal reasons, I couldn't go there. My mother passed away, and I had to choose a career in Pakistan so that I stay with my father and my sister. So at that point, I realized there was no scope of nanotechnology. Even there was no MS degree that was being offered in Pakistan. So the only way out was me to actually just slip a bit to the other field, and that was the time when I started working in the field of management. And I got to know because when I was a student then, studies was not something that only like intrigued me. I had a gold medal back in my BS as well. I'm a gold medalist for the MSPM as well. But studies was something that I always wanted to do, but extracurricular activities was something that always used to fascinate me. So whenever there was any competition, there was any their event, so मेरा interest होता था कि I should be the one speaking on the stage. I should be the one leading this whole project. So तब मुझे थोड़ा से एक realization हुई that management is something that I wanted to do. This has been my passion. Even though मेरी studies नहीं
थी, but I was doing this whole thing in part of the extracurricular activities. Then I thought, okay, Sam, I started working in a university again, and in their alumni and corporate relations department. I got to know about this digital marketing field कि ये एक नई चीज़ है जिससे ना सिर्फ कोई भी organization benefit कर सकती है, but individuals like they're earning a lot, they're creating content. This is something that's new to Pakistan, but obviously it's going to help us a lot in the longer journey. सो मैंने सोचा अब एक्सपीरियंस तो आ रहा है, 3-4 साल हो चुके हैं मुझे मैनेजमेंट में जॉब करते हुए, बट आई डेफिनेटली नीड अ डिग्री टू अ कंपनी बिकॉज यू बिलीव इट और नॉट, बिकॉज वेन एवर यू से ओके आई हैव दिस स्किल्स, आई हैव दिस एप्टीट्यूड, आई हैव द एक्सपीरियंस, but at many places you still need the academic knowledge, and that was the point I thought, okay, project management is something that will suit me the most. And I had my whole explanation for different reasons why I should join Bahria University, which other universities should be suitable. I'm going to ask you, yes. So why did you choose Bahria University? What stood out? What stood out? If I have to give this credit to one person, that will definitely be the cluster head of project management we had then, Mr. Fareed Zafar. He was one person who when I came for the interview and the interview and the test, and obviously there were people who were asking me why did you choose Bahria, and he was one person who fascinated me because he had that ambition, he had that energy, because he wanted to do something for this university. So I'll give this credit to him. And obviously my father was with me at that time, so जब भी सर फरीद ज़फ़र के साथ बातचीत हुई and my father was there and they both had the conversation, I said ये बच्ची जो है ये probably यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह सकती है, and I was doing the job as well. So सबसे जो अच्छा मुझे लगा, because there were other universities offering the same program, but the best opportunity was for the people who were doing a 9 to 5 job in their weekdays. So weekend का program होना और limited number of subjects, because obviously it's not कि आप एक full time job के साथ एक full time degree को परसुएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वीकडेज में जॉब करने के बाद आप पढ़ नहीं सकते, तो दैट वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड कि एटलीस्ट वीकेंड्स के ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए. सो आई प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट I think I topped that test as well, and I got scholarship. So scholarship was one another thing that I thought, okay, now this is something that God has given me another chance, and I should avail this opportunity, because it is again another pleasure, it is again another achievement starting on such merits. So if you say so, the credit goes to Mr. Fareed Zafar for sure. All right. Thank you, Mr. Fareed Zafar, for inducting such a brilliant person. And I'm going to send this particular chunk to him so that he realizes how much I appraise him for his effort for this university. Perfect. So can you recall some of your favorite memories, your teachers, your friends? What were you up to in the classroom and beyond the classroom? Okay, so I will call myself a very good student, because one thing that I learned over a period of time was कि जो शख्स अपनी टीचर्स की इज़्ज़त नहीं कर सकता, अपने उस्ताद की जो इज़्ज़त नहीं करता, वो दुनिया जो है वो इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती. और मुझे लगता था कि टीचर की इज़्ज़त तभी हो सकती है कि जब वो क्लास में बैठा हो और वो आपको कुछ पढ़ा रहा हो, तो आप अपनी 110% अटेंशन के साथ उसको सुने. मैं क्योंकि एक 9 to 5 जॉब भी कर रही थी, आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट माई होम, बट आई नेवर गॉट टाइम टू स्टडी, बट आई वॉज ऑलवेज गुड विद माई ग्रेड्स, बिकॉज मैं हमेशा क्लास में पढ़ती थी. जब टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप उससे डायरेक्टली पूछें. एक दफ़ा आपकी कन्फ्यूजन निकल गई, यू डू नॉट नेसेसरीली नीड टू स्टडी अ लॉट आफ्टर द आवर्स, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये होता है क्लास में बैठ के मस्तियाँ करते हैं, उसके बाद जब बाहर निकल जाते हैं, देन दे रियलाइज ओके वी हैव मिस्ड अ लॉट एंड प्रॉब्ली विल नीड टू स्टडी इट अगेन बिफोर द एग्जाम्स. सो उस वक्त मुझे without a doubt I think I had the best of the teachers that I could. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमें क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल फील्ड है, एंड थियोरेटिकल नॉलेज तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट में किस तरह से आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि काम तो उसी बंदे ने करना है, तो जो काम कर रहा है वो आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है. इट्स जस्ट नॉट द एकेडमिक नॉलेज, इट्स प्रैक्टिकल नॉलेज बेस दैट आवर टीचर्स हैड एट दैट टाइम. सो आई थिंक सेमेस्टर 1 से लेके टिल the time I had my thesis done, so all of the teachers were exceptional. They were all very good. They were all like they had grip of their subjects. जो हमें वो पढ़ाना चाहते थे उसकी practical examples के साथ उन्होंने हमें समझाया. So if I had to name a few teachers, I know because all of them are on my Facebook. यानी कि मेरा इतना अच्छा connection उनके साथ अभी तक है. उन्होंने मुझे याद रखा, मेरे लिए एक बहुत important चीज़ है, लेकिन मुझे वो नहीं भूलते, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में उन्होंने जितना एक इनपुट अपना दे दिया, एक उस्ताद की तरह उन्होंने मुझे जो एक टाइम दिया, जो उन्होंने एफर्ट्स किए मेरे ऊपर, मेरे नॉलेज के ऊपर, आई एम गोइंग टू बी लाइक फॉर एवर इन डेप्थ विद देम. All right.
shout out to your lovely teachers. And then what about your friends and class fellows? How did it feel working in groups and working as an individual? लड़ाइयाँ होती थी, teamwork था. Okay, that was a very interesting time, I must say. I had the best and the sweetest of the colleagues or class fellows that I ever could have. I had my best friends over here. मेरा थोड़ा सा मसला ये था कि मैं ज़्यादा टाइम इसलिए क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर जो है यू डोंट गेट टू मूव अराउंड एंड लाइक गो इन द कैफेटेरियाज और उस तरह से टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते. जस्ट कम टू टेक द क्लास एंड देन यू हैव अ वेरी स्मॉल ब्रेक एंड देन यू इंटरैक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड देन यू गो बैक. बट आई एम स्टिल like I still have a lot of friends from Bay Area. I'm still in contact with them and the best point was कि वो सारे professionals थे. वो अपने profession के साथ में पढ़ रहे थे and I would say it was one of the best time that I could have spent while studying and obviously having the best time of like collecting the memories with my best friends as well. Great. And so you talked about multitasking. You talked about how you were managing different things while you were studying. So how did you manage that? What was your secret? I want you to share something that is useful for the students. जो हमारी audience सुन रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना? अभी हम final पैगाम भी कहेंगे. But this is advice related to the young students who would be listening to you. चाहे वो project management के हैं, business studies के हैं, digital media के हैं, उसके बारे में भी हम सवालात करेंगे. Definitely. What is your best advice to students these days? Okay. मैं एक बहुत ओपन एंड ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूँगी. जो मेरे फादर मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा और लेकिन मेरे फ्रेंड्स ये ज्यूम करते तो ऑब्वियसली एक इंप्रेशन जाता है. इफ़ यू लाइक वर अ टॉपर ऑफ द क्लास पीपल इज्यूम अच्छा ये तो एक किताबी कीड़ा है, ये पढ़ती रहती होगी. दिस वाज नॉट द केस. मैंने जैसा से पहले मेंशन किया कि यू हैव टू कीप योर अटेंशन एंड यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ. मैनेजमेंट जब तक आप अपनी खुद की नहीं करेंगे आप किसी और प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते. तो मेरा शुरू से फोकस ये रहा कि लेट्स सपोज इफ़ आई एम हेयर टॉकिंग टू यू माई 110% एनर्जी शुड बी और अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉज. नॉट जस्ट कि अच्छा ठीक है इस वक्त मैं मोबाइल पे लगी रहूँ और जिस बातें हो जाए उसके बाद मैं रिग्रेट करूँ यार मैं ये बात भी कह सकती थी, मैं वो बात भी कह सकती थी. सिमिलरली इज़ द केस इन द क्लासरूम्स इज वेल. जब आपके टीचर आपको कोई बात समझा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, तो यू हैव टू पे अटेंशन. दिस इज क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्ट दैट दे हैव एंड इट इज़ अगैन यू आर गिविंग मनी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप उन टीचर्स को पे कर रहे हैं, ये आपके पेरेंट्स जो हैं उन टीचर्स को पे कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट को पे कर रहे हैं. आपने उनकी रोज़ी भी हलाल करनी है, आपने उनके पैसे हलाल करने हैं. तो इंस्टेड कि आप बाहर जाके ट्यूशन्स लें या किसी को इधर उधर से पकड़ रहे हो, आप 3 घंटे अगर दिन के लगाने आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उन 3 घंटे आप पढ़ लें. बहुत फ़र्क पड़ेगा. इट इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स जस्ट वन टाइम यू लिसन टू द टीचर इन द क्लास एंड वन टाइम यू रिवाइज बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स इट. दैट्स द की कि आपको एक जो आपने चीज़ मेमोराइज़ कर ली है या आपने याद रखी कॉन्सेप्ट ले लें. बिकॉज अभी भी बहुत से बच्चों का या मेरा स्पेशली मसला था कि अगर आप अज्यूम करते हैं कि किसी चीज़ को आप याद कर लेंगे लाइक रोट लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दैट्स नॉट ईजी बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट इवेंचुअली. आप एक लाइन याद कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में आप जो है उसको याद कर सकते हैं, लेकिन उसका जब तक मतलब आपको समझ नहीं आएगा आप कभी भी उसको आगे यानी कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप उसको याद नहीं रख सकेंगे. सो माई एडवाइस विल बी टू बी मोर अटेंटिव while they are taking the lectures in their classrooms. Give respect to your teachers because they are of course they're like obviously your spiritual parents. You have to be as respectful to them as you can be to your parents. Perfect. So focus, self-management, self-awareness, respecting your teachers, and it's very important. Excellent. So अभी हमने advice की बात की. So we talked about advice that you have for students. What about advice for young professionals who are graduating and they will step first in their professional fields? They'll take up their first jobs. What advice do you have for them? This is a very open, honest and blunt advice. Please do not expect कि जब आप graduate करेंगे तो एक officer या manager की कुर्सी आपके लिए इंतज़ार कर रही होगी. You are just as raw as anyone can be, who or like whatever like she is or he is. जिस भी background से आ रहे हों, जिस भी university से आ रहे हो, हम सबको एक level से start करना पड़ता है. My advice will be कि instead of just focusing on the academic knowledge that you are getting, go for internships. पेड होती हैं, अनपेड होती हैं. आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट आगे जी के अनपेड इंटर्नशिप्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि लगाया जाता है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती और मतलब पैसे दिए बगैर आपको रगड़ा लगाया जाता है.
दैट रगड़ा इज़ सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. अगर मैंने वो रगड़ा ना खाया होता तो मुझे शायद समझ ना आती, या मेरी वो ग्रूमिंग उस लेवल पे ना हुई होती कि मैं एक लेवल के बाद जाके एक जगह पे स्टक हो जाती. मेरे लिए इस एज में एक ऑफिसर या मैनेजर लेवल की पोजीशन काफ़ी हो जाती है. मुझे लगता है कि ओके दिस इज़ द पेस एवरीवन इज़ मूविंग अहेड. बट थैंक गॉड आई हैड द बेस्ट ऑफ द मेंटर्स जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि इस वक्त पैसे को मत देखो. जब आपकी फर्स्ट जॉब हो, डोंट लुक फॉर द मनी दैट यू आर गेटिंग, जस्ट लुक फॉर द ग्रोथ. आप कितना लर्न कर सकते हो. आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ते हैं, आपका टास्क एक होगा लेकिन आपको 3 और एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं. उससे उनको ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उससे आपकी कितनी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. उस टाइम आपको फील हो रहा होगा ओके दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट हैव ऑप्टेड फॉर. लेकिन मेरे एक मेंटर है, आई कॉल हिम माय गॉडफादर, मिस्टर हुमायूं शुजा. ही हैज़ बीन आई वुड से रे ऑफ होप एवरीवेयर. लाइक प्रोफेशनली मुझे जब भी कोई डाउट हुआ है तो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, जहाँ पे मेरी फर्स्ट सैलरी जो मुझे मिली थी एक स्कूल में टीचिंग की जॉब थी. व्हेन आई ऑब्वियसली हैड नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरी फील्ड से रेलिवेंट ऑब्वियसली यहाँ पे ना MS था ना मैं इसमें जॉब कर सकती थी. सो ही सेड आपको 22,000 की एक नौकरी मिल रही है, 9 to 5 आप 2 जाओगे, सैटरडे ऑफ है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी प्रॉबेबली एक स्कूल टीचर ही रहोगे, आपकी ग्रोथ नहीं है. लेकिन जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, उस नए डिपार्टमेंट के अंदर नए लोग होंगे, आपको एक कॉर्पोरेट सेटअप का एक्सपोजर मिलेगा. एंड ही बिलीव दैट आई कैन बी अ वेरी गुड पर्सन इन लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल. आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई कैन वर्क very well in the corporate environment. So he was the one who identified and gave me the suggestion, okay, this is something that you need to look on. And I did. Fortunately, I did. And the first break that I had after my first job was when I was opted, I was selected as the general manager of Pakistan's first AI-based TV channel. And I was a general manager at the age of 26. Again, he was the one who actually gave me the strength, gave me the confidence कि आपको ये इस वक्त अडॉप्ट कर लेना चाहिए. अगर उस वक्त मैंने वो रिस्क ना लिया होता और अगर मुझे अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस ना होता, आई वुड हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, आई वुड हैव मिस्ड दैट ट्रेन. सो प्रॉबेबली हैविंग द राइट mentors in your life and having like taking the risk at the right times, it has been very important for me, and this is the same advice I'm going to give to anyone who is stepping into a new journey. So you've talked about your successes, and mashallah, I see you have a very successful career and a very successful future. Still learning. Still learning, and very smart as well. But let's talk about a bit of failures. How have you overcome failures of life, which everyone is bound to face? Absolutely. So we have those moments of doubts. We have those moments where we're not successful in that scholarship, the job, you know, the ideals that we have placed. What have been your personal experiences? How have you drawn strength from yourself and overcome those barriers and failures? छोटे फेलियर्स की बात करूं तो वो डे टू डे बेसिस के ऊपर आते हैं, जब आपने खुद से लड़ना होता है, आपने अपने माइंड से लड़ना होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि इज़ दिस द राइट थिंग दैट आई एम सपोज टू डू, या ये जो मैं कर रही हूँ इसका जो एंड रिज़ल्ट है ये वही है जो मैं करना चाह रही हूँ. बचपन में आप सोचते हैं कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे, आप अपनी जॉब करेंगे तो यू विल बी इंडिपेंडेंट, यू विल हैव योर ओन कार, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन हैव लाइक यू कैन बाय एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम योर ओन सैलरी. बट दिस इज़ नॉट द एंड दैट यूर ऑलवेज लुकिंग फॉर. ये तो एक शुरुआत है एक नई ज़िंदगी की, एक नया कदम आपने रखना है. सो उस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ होता है कि ओके आई नीड टू डू समथिंग. एंड मेरे भी कुछ ऐसी ही परसेप्शन थी. When I achieved, like obviously I started taking some good salary in my second job, जहाँ पे मेरी position escalate हो गई थी. That time I was like, okay, I'm getting good money, I can buy whatever I want, but this is not enough for me. I need to do something that's beyond anything. और उसके लिए मेरी एक आइडेंटिटी को क्रिएट करना. सो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हर बंदे का अपने अंदर एक स्ट्रगल रहती है. एंड द फेलियर टू हैव दैट क्राइसिस इन योर माइंड, यानी कि अगर आप कहते हैं कि यू आर सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग इन, दैट्स द बिगेस्ट फेलियर दैट यू आर गोइंग टू हैव. सो fortunately I have the best father that I can, like anyone can have in the world. मुझे हर चीज़ में उन्होंने support किया हुआ है, अभी तक वो मुझे support करते हैं. He respects my decision, he helps me take that decision, and that's the reason I have that strength to take the right move. Again, my mentors and my teachers have been always there for me. लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक टाइम आया लाइफ में when I realized okay सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, education very good, family life very good, professional life it was escalating, but there was a point when I realized अच्छा इस organization में GM के बाद probably CEO लग सकती हूँ, but this is not something that I want at the moment. और उस वक्त क्या हुआ, I gave my 110% to that particular organization, and during COVID times it collapsed. Organization बंद हो गई.
एंड उस वक्त जो है आई हैड एक्चुअली स्पेंट माई सेविंग ऑन समथिंग एल्स. आई डिड नॉट हैव दैट अमाउंट इन माई हैंड एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन अच्छा मुझे तो बेतहाशा नौकरियाँ मिल सकती हैं, मुझे वैसे लोग बुला रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की. लेकिन जब कोविड आया तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए, अपने एक एक पैसे बचाने के लिए अपनी ही एक जंग लड़ रहा था, बिकॉज वी वर सो अनसर्टन ऑफ द फ्यूचर. सो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके आई शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मैं जो जिस परसेप्शन से चल रही थी कि हर चीज़ अच्छी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, अच्छी नहीं भी हो सकती. पर अगैन आई बिलीव कि जो आपने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एक आइडेंटिटी बनाई होती है, जो आपकी एक रेपुटेशन मार्केट में बन जाती है कि ये लड़का या ये लड़की जो है ये बहुत मेहनती है, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ही माइट हैव अ फ्यू फेलियर्स इन द लाइफ, बट इसका एप्टीट्यूड जो है, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, एटीट्यूड और एक एप्टीट्यूड. अगर तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आपके एप्टीट्यूड में लर्निंग एबिलिटी है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे आप सिखाएं, मैं सीखूंगी और मैं 110% दूंगी. सो दिस एक्चुअली हेल्प मी. सो व्हेन आई डिड नॉट हैव एनी जॉब, 6 months I think I did not do anything. I did a lot of things obviously. फिर मैं freelancing में आ गई. I started my own consultancy firm at that point and I realized okay, I do not need a job to sustain myself and probably this is something that I should have understood years back कि मुझे अपने venture के ऊपर उतनी ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए थी instead of giving my 110% to any one particular organization. So then again I started working for my own. obviously अभी भी कर रही हूँ as a freelance journalist, मैं काम कर रही हूँ 2-3 organizations के लिए और again वहाँ पे भी अच्छे लोग मुझे मिले. Have you met Bahrians? अब नए Bahrian students आते हैं अभी भी obviously मैं बहुत सारे लोगों से. How does it feel when you meet these new generation of Bahrian students? I'm very happy. I'm a lot of people in my own circle, they are there like taking their degrees from Bahria University. तो overall the experience has been very good. मुझे अच्छा लगता है जब वो ये बताते हैं कि वो बहरिया से हैं और अगैन मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि जो टाइम वहाँ पे लगा रहे हो उसका 110% निकालो, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब इन्जॉय करना चाहिए. एक अच्छा आपके साथ एक इन्जॉयमेंट वाला टाइम होना चाहिए. यू गो आउट, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट. अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये सोच रही थी कि आई हैव टू मीट 2-3 Bahrians in my list. सो हमारे मंथली या वीकली गेट टुगेदर्स होते रहते हैं. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट. बट having that identity as a Bahrian again itself, it was very important. और जब भी आप किसी कहीं पे जाएं तो you should be a proud alumni of Bahria University. That is what I would want to say to them. Perfect. And we're very proud to have you a part of our network. And my one question, another question I would like to ask is about digital media, since ये आपकी field है. So let's ask a few questions related to that. We've all jumped on the bandwagon. So I have to say, is this a buzzword? Do we really need it? You're the expert, so I want to hear your honest answers. If you can give us your expert advice on how is it changing the landscape for Pakistan and how is it impacting young people? Okay. अगर मैं थोड़ी सी स्टार्स के हवाले से बात कर रहा हूँ तो approximately 86% of the population of Pakistan is using cell phone. So it means कि हर एक के पास access है मोबाइल फ़ोन का और टीवी हमारे घरों में अब नहीं देखा जाता. एंड आई बिलीव दिस इज़ ऑल्सो BUTV इज़ अ वेब चैनल एज वेल. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग लैंडस्केप, द चेंजिंग डायनामिक्स इन द लैंडस्केप ऑफ डिजिटल मीडिया एज वेल. अब सिर्फ ये नहीं है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं तो आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस जो है वो हो रही है. नाउ यू हैव टू क्रिएट द कॉन्टेंट अकॉर्डिंगली एज पर द नीड ऑफ द डिजिटल एरा एज वेल. अगर हम कहें कि इसकी ज़रूरत है या नहीं तो आई वुड से digital is the future and the future is already here. सो हम प्रॉबली लेट हो गए अगर हम ये अभी भी ये सवाल अपने आप से करें या किसी और को समझने की कोशिश करें, बिकॉज पाकिस्तान में वी आर लैगिंग लाइक 60-70 years बिहाइंड विद द पेस दैट द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड. सो अभी तक हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हैं, बट पीपल आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं जो कि बहुत आगे चली गई हैं, लेकिन हम अभी तक जो है अपनी बेसिक डिग्रीज़ के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. और फिर हम डाटा साइंस के बारे में बात नहीं करते, हम डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बात नहीं करते. गूगल आपकी ज़िंदगी जो है अपने डाटा से मैनेज कर रहा है, आपको मैनेज कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस को मैनेज कर रहा है. दीज ब्रांड्स अप्लाइंग विद सबकॉन्शियस बेस्ड ऑन द डाटा दैट दे आर कलेक्टिंग. इट्स ऑल डिजिटल. वी हैव स्टेप्ड इनटू इट बट प्रोबेबली वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट टू फार. अब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आपका किसी भी तरह का कोई काम होगा, अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड कि इसको डिजिटल मीडिया के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज ब्रांडिंग एंड प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन डिजिटल मीडिया इज अगैन डिफरेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न. सो
जब तक आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आप फिलांथ्रोपी कर रहे हैं, ठीक है, आप फिलांथ्रोपिस्ट हैं, आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां संवार रहे हैं, लेकिन आप अपने उस काम को बढ़ा कैसे सकते हैं जब तक आप इसको अपने, इट्स नॉट शो ऑफ, बट इट्स अबाउट लाइक कम्युनिकेटिंग दैट होल मैसेज टू द लार्जर ऑडियंस, एंड प्रॉब्लली यू कैन डू इट यूजिंग द डिजिटल मीडिया. किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है, उसको नहीं मालूम कि आप कहाँ पे हैं, ही और शी इज़ गोइंग टू गूगल यू. और अब अगर आपकी गूगल के ऊपर आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं, इट मीन्स यू डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. सो इट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़, हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म या प्रिंट जो है वो बिल्कुल एकदम से कोलैप्स हो रहा है. DSNGs, ऑपरेटर्स, कैमरा मैन, ये सब इन सब की जॉब्स एक्सटेंड करती जा रही है बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. यू डू नॉट नीड अ DSNG टू कवर एनीथिंग. यू हैव योर मोबाइल फोन. सिटीजन जर्नलिज्म, मोबाइल जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट कितना पुराना हो चुका है. CNN, BBC, दे आर यूजिंग इट. Al Jazeera is using it. So I have been incorporated, like I've been working with a few people in my circle. Amir Jahangir was the CEO of Sama TV, and he was the one who introduced me to the concept of mobile journalism. So we are also trying to educate people. कुछ हमने trainings भी करवाई हैं जिसमें हमने लोगों को यही सिखाया है कि अगर आप content बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने mass communication के अंदर एक अच्छी डिग्री ले ली है, आपके पास exposure नहीं है, आपके पास एक platform नहीं है कि आप अपना content कहाँ पे बनाएंगे, you can create your own platform. It's not that difficult. किसी भी बच्चे को पता होगा कि मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है. सो इफ़ यू हैव एन iPhone यू कैन यूज़ द iMovies. अगर आपको नहीं कोई और दूसरा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे आप कोई भी कंटेंट को बना के अपलोड कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट अर्निंग. अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लव टू मेंशन इट ओवर हियर दैट आई वाज ट्रेनिंग इन द नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम फॉर द डिजिटल मार्केटिंग. एंड वहाँ पे मेरे 2 स्टूडेंट्स माशाल्लाह से ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स हमारा पूरा एक टेन्योर था जिसमें हमने उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सिखानी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से रुक गया. बट द ओनली एडवाइस दैट आई गिव देम वाज कि बेशक हम अभी इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट यू हैव योर डिवाइसेस विद यू, क्रिएट योर प्लेटफॉर्म्स. एंड 2 of them like they a lot of them are working, but 2 सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं जो कि स्मार्ट डायल के कामयाब जवाब प्रोग्राम में भी आई. उनके पूरे स्टार्टअप्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं. दे आर अर्निंग फ्रॉम इट, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दे आर हायरिंग मोर पीपल इन देयर वेंचर. सो दिस हैज़ बिन समथिंग दैट आई हैव सीन, एंड आई कैन गारंटी कि अगर कोई चाहता है कि वो डिजिटल मीडिया के थ्रू अर्न कर सके, वेदर और नॉट लाइक उसके अंदर कोई स्किल्स हैं, अगर वो अच्छे तरीके से हंस भी सकता है, गा भी सकता है, रो भी सकता है, तो probably he can make money out of social media, whatever the case. I think we should hire you as our next visiting faculty or permanent faculty. This is very fascinating. And thank you so much for giving time to us. Thank you so much for coming here, pleasure. sharing your stories. And what I really like about you is that I liked, from my feedback and takeaways, that you have said that we need to hustle and constantly strive and not be in our comfort zone. कंफर्ट जोन में जो बैठ गया, जिसको लग गया कि ज़िंदगी बस यही है, या AC में बैठ के एक चेयर के ऊपर बैठ के आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, यू गोइंग टू वेस्ट योरसेल्फ. आज तक कोई ज़िंदगी में, मतलब दुनिया में कोई बंदा आया नहीं है कि जिसने अपना दिमाग का भी लाइक 1% से ज़्यादा यूज़ किया हो. जो जिसने कर लिया उसको माइंडस्टाइन कह देते हैं या बहुत कोई आगे चला जाता है. तो हमने अपने दिमाग का बैरियर इतना लिमिटेड कर दिया क्योंकि दिस इज़ इट. हमने एक 9 to 5 की जॉब करनी है, जिसके बाद हमने इतने पैसे कमा लेने हैं कि हम घर बना लें, शादी कर लें, ये काम कर लें. Probably you're not here in this world for yourself. आपका एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है. उस मकसद के बारे में सोचें, और वो मकसद अगर आपको खुद नहीं मिल रहा तो इधर उधर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, मेंटर्स, उनसे बात करें. ऐसे लोगों से बात करें जिनको आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट किया है. उनसे आप बात करें. दे आर गोइंग टू गिव यू मोर डायरेक्शन. एंड ऑब्वियसली हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन माई फ्यू टीचर्स जिन्होंने मुझे बेरिया यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया. स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सर बशीर हमारे कम्युनिकेशंस के, आई सी हिम अराउंड इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के पास ही उनका है. बट द वे ही टॉट अस कम्युनिकेशन, मुझे अभी तक याद है कि मैं अभी तक जब कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो आई कैन रिकॉल ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट ही टोल्ड अस. सर सुहेल इकबाल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत अच्छा उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे तो जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि ये इतनी आसान है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो नॉलेज एरियाज इतने आसान तरीके से स्टोरी लाइन की तरह उन्होंने एक्सप्लेन किए. ही इज़ ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द PMI certifications as well. He's like a living legend, Sir Suhail Iqbal. Sir Ahad Nazir procurement उन्होंने इतनी अच्छी सिखाई. When I was applying for a project, उसमें हमने पूरा एक बनाया, POC बनाया. So I really thank him for them. Sir Tabjeel Ashraf, उन्होंने हमें सिखाया कि रिस्क लेना कितना ज़रूरी है. He used to tell us that you have to create a long list of the risks that you are going to implement. Sir Ali Raza, he gave me some tough time for the PMO project, but I learned a lot from that. कि life is not that easy. You have to like struggle for it. If you don't know anything, you need to do a little
more struggle that you necessarily do. A lot of teachers, I'm sorry if I miss it, to Sir Ehsan Saeed, Sir Faisal, उन्होंने quality मुझे बड़े मज़े से सिखाई. Sir Ehsan Saeed ने हमें EVM बड़ा अच्छा सिखाया. कुछ हमारे जो है finance के teachers थे. All of them were like really helpful, all of them. And yes, of course, Sir Bakhtiar जिन्होंने मुझे मेरा project जो मैंने thesis opt किया था MSPM में, बहुत कम students ने opt किया, but मैं उनके पास जाती थी, मैं बहुत परेशान होती थी कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग थीसिस इन MS और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो कि करते हैं. ही यूज्ड टू गिव मी, अच्छा ये तुम 3 बुक्स पढ़ लो, मैं उससे थोड़ी आसानी कर दें, कुछ समझ नहीं आ रहा, जॉब के साथ मुश्किल हो रहा है, ये 3 और बुक्स पढ़ लो. ही गेव मी दैट टफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है. अगर वो भी PhD करके बैठे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, तो अगर उन्होंने मुझे इतना आसानी से चंक्स निकाल के दे दिए होते, स्पून फीडिंग कर दी होती, तो प्रॉबली मैं वो ना होती जो इस वक्त मैं हूँ. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, and he made sure that I get an A in my thesis, and I owe my credit, I owe my gold medal to Sir Bakhtiar for sure. Thank you so much. I think your teachers who are listening, and I hope they will listen to this episode. I'm going to send it to them. They will be very happy and they'll be very proud of you, and we are very proud of you. Thank you so much, Bakhtawa, for joining us. I hope that we meet again, and Definitely. after a few years or even sooner, we interview you again and we talk more Definitely. about your successful life stories and lessons learned. Thank you so much. Thank you for having me. Ladies and gentlemen, thank you so much for listening to our episode. I hope to catch you on another episode. Keep on listening and keep on looking at our channel. This is Bahria University, Back to Bahria program. Thank you. Bye-bye.